So another one advanced level example on a unit load method. Hi guys, my name is Nikhil and you're watching Strucknik. So basically in the previous video we have looked for the basic example. The link is in the description. If you haven't saw that particular video, please go in the description or you can also watch it on our channel. So basically in that video we have discussed about the basic example. Now in this video we are going to divide this particular example in some of the part. Now let us start with the example. क्या दिया हुआ example में? So in this particular example we have frames like this way. Now the frame is having, let us say, ये जो AB और CD, these are the column which is having a length of a 5 meter. ये जो आपका portion है B and BC, okay, it is divided by this particular point load actually. So B is of a 1 meter and this particular BC is a 3 meter, okay. It is not visible right now, let us write it down over here also. ये 3 meter और ये हो गया 1 meter. तो जैसे हम लोग ने लास्ट इसमें किया था, द फर्स्ट स्टेप ओवर हियर इज टू डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शंस. ओके, सो डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शंस वी हैव टू अगेन फॉलो the steps, that is the summation of f of x equals to 0, summation of f of y equals to 0 and the moment. Okay, so these are our basic mechanic steps. So we are considering, let us say, moment at a point A equals to 0, clockwise is positive and anti-clockwise is negative. So the first force, okay, oh sorry, I haven't written the intensity of a UDL. UDL intensity is 20 kilonewton per meter, okay. So we'll write it down the first one, which is 20 into 5 into 2.5. This particular UDL comes in the clockwise direction, is it 20 into 5 into 2.5, okay. Then we have a point load at the top, so which is plus 20 into perpendicular distance, which is 1. At the end we have this particular RD which is coming in anti-clockwise direction, so minus RD into perpendicular distance. Perpendicular distance here 3 plus 1 kitna ho gaya, that is a 4. Okay, so if I solve this particular example, I'm going to get the RD which is equals to 67.5, that will be in terms of kilonewton. Once I have the value of RD, I can go with another one part, that is the next part over here is to determine the summation of f of y equals to 0. So if it is, I'm considering the summation of f of y. So f of y में देखो, we have the first step over here is to determine VA minus 20 plus RD, which is equals to 67.5 equals to 0. Let us say VA is equals to minus 47.5. So VA minus 47.5, okay. So VA will be in the downward direction, so write down VA which is a 47.5. we are getting RD which is equals to 67.5, which is a upward reaction, okay. VA मिल गया, VB मिल गया, and similarly if I continue with my summation of f of x, मुझे क्या मिल जाएगा, I'll get this particular HA, okay. HA will be in this direction. अब ये तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ देखो, if I take the summation of f of x, देखो 20 into 5 का एक लोड ये साइड चला जा रहा है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए वी हैव अ सपोर्ट रिएक्शन. सपोर्ट रिएक्शन कितना रहेगा, इट विल बी 100 किलोन्यूटन. इट्स जस्ट अ बेसिक व्हाट यू कैन से मैकेनिक्स, ओके. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. जैसे मेरे रिएक्शंस कवर हो जाते हैं तो वो पर्टिकुलर जो डायग्राम रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो विल कॉल दिस पर्टिकुलर डायग्राम एज इफ एम डायग्राम, कैपिटल एम डायग्राम बोल जाए इसको, ओके. सो ये जो हो गया मेरा कैपिटल एम डायग्राम. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, सो जैसे ये मेरा स्टेप नंबर 1 है, ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन कॉल एज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना, इस सेक्शन के ऊपर मुझे बोला गया है टू डिटरमाइन horizontal deflection at a point D. Okay, so H represent horizontal point D and Y is your deflection. Horizontal deflection at a point D बोला गया मुझे ये क्वेश्चन में, ओके. सो horizontal deflection at point D के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सब लोड्स निकाल के आई हैव टू अप्लाई अ पॉइंट लोड. क्या किधर लगाएंगे हम लोग, तो विल अप्लाई पॉइंट लोड हॉरिजॉन्टली एट अ पॉइंट डी. ओके, सो दैट इज माय फर्स्ट स्टेप. इसके साथ ही साथ क्या बोला गया मुझे, टू डिटरमाइन स्लोप एट अ पॉइंट ए. किधर निकालना है, तो हाउ टू डिटरमाइन स्लोप एट अ पॉइंट ए. पॉइंट ए पे कितना स्लोप रहेगा एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कितना रहेगा, ये दो मेरे क्वेश्चन है.
So let us begin with the second part. Okay, second part के लिए क्या करते हैं, we'll look for another one separate diagram over here. क्या कर दिया हम लोगों ने, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव टू रिमूव ऑल ऑफ द लोड्स. ओके, ये जो पूरे सिस्टम में जितने भी लोड्स थे उन सबको मैंने निकाल दिए. नाउ बेसिकली ये जो सिस्टम है इसमें, ओके, ये जो पॉइंट डी है, ओके, आई ड्रॉ दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑल्सो. इधर आई हैव अ पॉइंट ई, ये पॉइंट बी हो गया, सी, डी एंड ए. व्हाट हैव टू डू, मुझे बोला गया था मेरा फर्स्ट दैट इज टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट डी. ओके, सो इफ आई वांट टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट डी, आई एम गोइंग टू अप्लाई 1 किलोन्यूटन लोड एट अ पॉइंट डी. पॉइंट डी पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 किलोन्यूटन का लोड लगा रहे हैं. Now the direction of a 1 kilonewton load is completely up to us. If it is you want to take it in this direction, you can take it. It's completely up to us. Okay, तो ये 1 kilonewton का लोड ले लिया. इसके बाद वी नो दिस पर्टिकुलर स्पैन इज ऑफ 5 मीटर, ये भी 5 मीटर का स्पैन है, ये है 1 मीटर एंड दिस इज़ 3 मीटर. ओके, करना क्या है, देखो ये पर्टिकुलर जो है इसमें हम लोग समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लगाते हैं. वंस आई अप्लाई द समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट अ पॉइंट ए विच इज़ 1 किलोमीटर. ठीक है, अगेन बेसिक क्या किया, देखो एच ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये साइड कितना आएगा 1, जितना ये लोड है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए इधर 1 किलोमीटर का रिएक्शन आएगा. ओके, ये जैसे 1 किलोमीटर का रिएक्शन हो गया अपने पास. सुन एज आई कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पार्ट, देखो इसके साथ ही साथ जो मेरा डायग्राम बन जाता है, आई कॉल दैट पर्टिकुलर डायग्राम दैट इज़ M1 डायग्राम. क्या बोल दिया मैंने इसको, तो M1 डायग्राम बोल दिया. ठीक है, जैसे M1 डायग्राम हो गया, तो गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. देखो M1 डायग्राम के साथ ही साथ मुझे जाना है M2 डायग्राम में. ओके, अभी क्यों जा रहे हैं M2 डायग्राम में, तो देखो द स्कोप बिहाइंड इट इज़, मुझे नेक्स्ट बोला था कि डिटरमाइन थीटा ए ऑल्सो. ओके, सो थीटा ए के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई अ यूनिट मोमेंट. ओके, वी हैव टू अप्लाई यूनिट मोमेंट एट अ पॉइंट ए. अब उसके लिए भी सेम प्रोसीजर, मतलब क्या करेंगे, सब लोडिंग निकाल देंगे एंड विल अप्लाई यूनिट मोमेंट एट अ पॉइंट ए. ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो देखो विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. इसके लिए वी हैव टू लुक फॉर द अनदर वन सेपरेटेड डायग्राम ओवर हियर. ये हो गया मेरा डायग्राम. अभी डायग्राम जैसे कंप्लीट हो जाता है, क्या करना था, एज पर माई पर्टिकुलर सेक्शन आई हैव टू ड्रॉ आई हैव टू कंसिडर यूनिट मूवमेंट. ठीक है, यूनिट मूवमेंट किधर कंसिडर करना है, तो आई हैव टू कंसिडर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट एट अ पॉइंट ए. ओके, तो देखो जैसे मैं ये पॉइंट ए पे, ओके, इफ इट इज आई एम कंसिडरिंग अ यूनिट मोमेंट एट अ पॉइंट ए, विल अप्लाई यूनिट मोमेंट ऑफ 1 किलो न्यूटन मीटर. इसका एक मैंने मोमेंट लगा दिया. ओके, अभी जैसे हम लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिट मोमेंट कंसिडर करते हैं, लेट अस से टू टेक दिस पर्टिकुलर सिस्टम इनटू इक्विलिब्रियम. ओके, यू हैव टू कंसिडर सम ऑफ द मोमेंट्स. ओके, और यू कैन से सम ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशंस. तो जैसे 1 किलोन्यूटन का मूवमेंट है, एज पर दैट वी हैव अ रिएक्शन ऑफ 0.25 इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड 0.25 इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो ये तो रिएक्शन वाला पार्ट हो गया. ये जैसे मेरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, इसके साथ ही साथ जो डायग्राम फॉर्म होता है, विल कॉल दैट पर्टिकुलर एज ए M2 डायग्राम. ठीक है, तो देखो बेसिक्स जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था आपको कि ये M1 डायग्राम कैसे फॉर्म होता है, M2 डायग्राम कैसे फॉर्म होता है. तो जो डायग्राम निकालने का पार्ट था वो मेरा कंप्लीट हो गया. सो दिस इज व्हाट यू कैन से योर स्टेप नंबर 3. ओके, so what is our step number 1 to determine the capital M diagram? What is our step number 2 to determine the small M1 diagram? So देखो ये step number 1, this will be your step number 2 and this will be your step number 3. So this is all about what you can say we have done about M1, M2 and M3 diagram. So in the next part we are going to look for how to determine the slope and the deflection using unit load method. So अभी के लिए इधर तक ही रुकते हैं.
बिकॉज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आई एम डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो इनटू सम पार्ट्स. But I hope all of you understood this particular session very well. If you have any doubts, query, please drop them in the comments. And please like, share, and subscribe, and also press the bell icon, because whenever I'm uploading a video, you will get the notification as soon as possible. Thank you so much for watching. Have a great day.